नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट की जिसमें एक मर्डर एक्यूज्ड को ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया और फिर हाई कोर्ट ने उन्हें एक्विट कर दिया। तो हम देखेंगे पहले फैक्ट्स ऑफ द केस एंड देन वी विल डिस्कस ऑन व्हाट बेसिस द कोर्ट हैव एक्विटेड देम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जजमेंट डिलीवर हुई है 16 अप्रैल 2024 को एंड द टाइटल ऑफ द केस इज विदेशी कुमार वर्सेस स्टेट, क्रिमिनल अपील नंबर 304/2002, right? And there are two accused. The second accused is Ramnath. So the second appeal is criminal appeal number 421/2002, Ramnath Singh versus state, right? So that is the details of the case which we are discussing, and it is decided by Delhi High Court by the bench of Mr. Suresh Kumar Keth and Mr. Manoj Jain. So before anything else, let's discuss the facts of the case quickly and what is the defense of the accused. So investigation took off when on 31st of July 1997 at about 8:35 a.m. Keyman Tej Bahadur informed the local police that body of a person run over by train has been lying on EMU track. On the basis of such information, ASI Hazari Lal along with police team rushed to the spot where they saw a dead body of a male of 20 to 22 years lying on railway track having two sharp cuts on the neck. The right ear of such person was found to be missing. The left hand was lying severed at some distance. Blood was noticed in bushes situated at the distance from few steps from the dead body, and one blood smeared vegetable cutting knife was recovered. Severed hand was found lying at a distance of 195 steps away in the southern direction from the dead body. The driving license contained in his wallet led to his identity, and the name of the deceased was ascertained as Tuntun. Police was of view that somebody has killed him with knife, and therefore the perpetrator, with the intention of screening himself and to destroy the evidence, put the dead body on the railway track in order to give color of train accident, and therefore the case under section 302/201 was रजिस्टर्ड नाउ। तो दोस्तों केस ये है कि ये जो व्यक्ति है टुनटुन, इसकी डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पे मिलती है, और रेलवे ट्रैक पे कोई जो रेलवे का एम्प्लॉय होता है, कीमैन जो होता है, वो लोकल पुलिस को बताता है और पुलिस आती है और पुलिस देखती है कि ये जो बंदा रेलवे ट्रैक पे पड़ा है, इसकी गर्दन पे, इसकी नेक पे 2 कट के निशान हैं, और पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है। पुलिस को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को किसी ने मार के रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया है इस तरह से, ताकि ये जो है ट्रेन एक्सीडेंट लगे, राइट। ये और पुलिस को वहाँ से इसके कान भी कटा हुआ है इसका एक, और इसकी हैंड भी सिवियर्ड है, हाथ भी कटा हुआ है, एंड एक ब्लड स्ट्रेन्ड नाइफ जो है वहाँ से मिलता है, वेजिटेबल कटिंग नाइफ, ये भी वहाँ से मिलता है, राइट। तो इस तरह से जो है एक फिर केस रजिस्टर होता है 302 में, और इसमें 2 व्यक्ति काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, एक बूधन मांझी, एक गन्नूरी, एक बबली, राइट। 3 व्यक्ति ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब हम एविडेंस डिस्कस करेंगे देन आई विल टॉक अबाउट इट, बट बिफोर दैट लेट अस सी व्हाट द एक्यूज्ड हैव सेड इन 313 स्टेटमेंट before court. So they denied that they have consumed liquor with Gannori and Bodhan and Tuntun. As far as accused Ramnath is concerned, he did admit that he was working as driver with PW21 Sardar Kunjinder Singh and used to drive truck, but he claimed that he did not know Tuntun. As far as accused Videshi is concerned, he claimed that he has no concern with Tuntun or that matter. He is co-accused Ramnath, and he never met Gannuri, Bodhan and Ashok,
and thus they both claim that they has been falsely implicated in the present matter and no concern with the murder in question. तो ये दोस्तों केस की कहानी है। यहाँ ये कहते हैं कि एक व्यक्ति कहता है कि मतलब ये व्यक्ति कहता है कि हम तो जानते ही नहीं टुनटुन कौन था, और इनफैक्ट वन ऑफ द को एक्यूज्ड इवन रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई हिज को एक्यूज्ड ऑल्सो, राइट। वो कहता है मैं तो इसे भी नहीं जानता ये कौन है, राइट। 313 की स्टेटमेंट में ऐसा वो कहते हैं। तो उसके बाद जो है दोस्तों ट्रायल कोर्ट में ट्रायल चलता है, और पुलिस थ्योरी ये बनाती है कि लास्ट सीन थ्योरी के बेस पे केस बनता है, जिसके अंदर जो है ये कहा जाता है कि डिसीज्ड को जो है आखिरी बार इन्हीं की कंपनी में देखा गया था, एक्यूज रामनाथ और विदेशी कुमार की कंपनी में देखा गया था, राइट। बट जो ये बोधन मांझी और गन्नूरी है, जिनकी झुग्गी में इन्होंने दारू पी थी सब ने, एज पर द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये गन्नूरी, बोधन मांझी, टुनटुन, रामनाथ एंड विदेशी कुमार, दे ऑल हैव ड्रंक लिकर इन देयर झुग्गी, इन द झुग्गी ऑफ बोधन राम और गन्नूरी, राइट। तो इन्होंने वहाँ दारू पी, और फिर ये 3 व्यक्ति टुनटुन, विदेशी कुमार एंड रामनाथ ये चले गए, और टुनटुन गन्नूरी और बोधन मांझी को बोल के गया कि तुम मीट बना के रखना, हम अभी आके खाते हैं, कुछ देर में आते हैं और हम मीट खाएंगे साथ में, राइट। तो ये वो बोल के गया। तो पुलिस ने इस बेसिस पे लास्ट सीन थ्योरी के बेसिस पे केस बनाया, और जो आपने अगर नोटिस किया हो तो ये रात को गया है, एंड इन दी मॉर्निंग 31st दे सेड दैट द बॉडी वाज फाउंड ऑन द रेलवे ट्रैक, राइट। तो वो जो 8 घंटे का जो गैप है उसके बेसिस पे केस चलता है। तो कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट ने जो इसको एक्विट करने का वन ऑफ द ग्राउंड बनाया, वो बनाया है कि कोर्ट ने ये कहा कि प्रोसिक्यूशन हैज़ नॉट बीन एबल टू प्रूव द मोटिव ऑफ द मर्डर। वो कैसे नहीं, तो प्रोसिक्यूशन ने मर्डर का मोटिव ये बताया है कि ये जो व्यक्ति है रामनाथ, एक्यूज रामनाथ, इसके बबली नाम की लेडी से इलिसिट रिलेशन थे, एंड इलिसिट रिलेशन की वजह की बात जो है वो टुनटुन को पता चल गई थी। सो इसीलिए ही हैव मर्डर्ड टुनटुन अलॉन्ग विद विदेशी कुमार, राइट। अब इस केस में ये बबली नाम की जो औरत है ये गवाह के रूप में आई, और बबली डिनाइड हर हैविंग इलिसिट रिलेशन विद एनीबडी, ठीक है। बबली ने इनफैक्ट ये भी कहा आई डोंट नो दी टुनटुन एंड आई डोंट नो दी अदर 2 एक्यूज्ड ऑल्सो, राइट। तो ये तो बात होगी क्लियर। तो बबली है हॉस्टाइल, राइट। बबली का एक हस्बैंड है लाल बहादुर, वो लाल बहादुर की कंप्लेंट पे ये केस रजिस्टर हुआ है, और केस के दौरान ये भी सामने आया कि ये जो बबली का एक बेटा था राजू और एक रिलेटिव था शंभू, इनका भी मर्डर हुआ था, और उनके भी एक्यूज्ड ही आरोपी हैं उस केस में भी, और वहाँ एक्यूज बरी हो गए हैं उन दोनों केस में, और वहाँ भी लास्ट सीन थ्योरी का ही थ्योरी है, और उस केस में भी यही मोटिव है कि राजू को और शंभू को, जो उनको ये पता चल गया था कि एक्यूज रामनाथ के बबली के साथ इलिसिट रिलेशनशिप है, इसीलिए उनका भी मर्डर कर दिया गया, राइट। तो ये थ्योरी है। तो अब क्योंकि बबली ने खुद ही आके ये कहा कि मेरे कोई इलिसिट रिलेशन नहीं है, इनफैक्ट आई डोंट नो टुनटुन, आई डोंट नो रामनाथ एंड आई डोंट नो गन्नूरी, तो कोर्ट ने ये कहा कि मोटिव को प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाया। उसके बाद जो बात आती है दोस्तों, उसके बाद बात आती है कि ये जो शराब पीने वाली बात है, जो लास्ट सीन थ्योरी वाली बात है, इसके रिगार्डिंग कोर्ट ने ये कहा कि ये जो व्यक्ति हैं गन्नूरी और बोधन मांझी, इनके पास से इनके दोस्त ये जो तीनों लोग थे गए, एंड दे नेवर केम बैक, दे डिड नॉट मेक एनी इंक्वायरी, इन्होंने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करी, राइट। और इन्होंने देखा भी नहीं उसको, उसके साथ बस एक कहानी बन गई
कि उसके साथ गए थे और वो है। और उसके बाद फिर एविडेंस में ये भी आया कि ये व्यक्ति कहता है, इनमें से गनमुरी और बोधन मांझी ये कहते हैं कि हमें तो इसकी जो खबर है 2 तारीख को मिली थी, जबकि वो दैट वाज फाउंड ऑन 31st। तो 2 तारीख से लेके आप 30 तारीख तक आपने कोई इंक्वायरी नहीं करी, आपने कोई कंप्लेंट नहीं करी। अच्छा, एक और बात है, इनमें से कोई भी व्यक्ति पुलिस के पास नहीं गया, ना बोधन मांझी गया, ना गनमुरी गया, और जो 1-2 लोग और इनके साथ दारू पी रहे थे वो भी नहीं गए। और पुलिस इन सब के पास पहुंच गई। और पुलिस को पता था कि ये दारू भी पी रहे हैं, और ये इन्होंने इसको आखिर में इनके साथ देखा भी था, है ना। तो बेसिकली दैट डज नॉट फाउंड कन्विंसिंग थ्योरी, एंड तो इस बेस पे इनकी ये चीज़ लास्ट सीन वाली चीज़ जो है वो सफिशेंटली प्रूव नहीं हुई। एक और जो चीज़ इन्होंने जो इस केस में आई है वो ये है कि जो मैंने बताया कि जो नाइफ है, वो नाइफ, पहली बात तो जो डॉक्टर आया फॉरेंसिक वाला, वो बोलता है कि जो डॉक्टर को जो आज चाकू आया दैट वाज शार्प एज्ड फ्रॉम बोथ साइड, लेकिन जो चाकू मिला है दैट इज शार्प एज्ड फ्रॉम वन साइड, राइट। तो ये चाकू भी डाउटफुल हो गया। और उसके बाद एक और बात है कि ये चाकू से कोई चांस प्रिंट नहीं लिए, एक्यूज के हाथ के निशान नहीं मिले कोई चाकू से, ठीक है। और कोर्ट ये कहता है कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि एक्यूज इतना शाना है, इतना क्लेवर है कि उसने मर्डर करा और बॉडी को ट्रैक पे फेंक दे ताकि ये इम्प्रेशन जाए कि ट्रेन एक्सीडेंट से डेथ हो गई। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो एक्यूज इतना बेवकूफ़ है, वो चक्कू वहीं छोड़ के चला गया, है ना। तो कोर्ट कहता है कि ये जो चीज़ें हैं दैट इज़ नॉट कन्विंसिंग। उसके बाद एक और चीज़ जो चाकू का ये हुआ, और उसके बाद फिर एक ब्लड स्टेन क्लोथ्स इन्होंने इनकी रिकवरी हुई है। तो कोर्ट कहते हैं कि जो एक्यूज़ की आप कह रहे हैं कि कपड़े इसके ब्लड स्टेन कपड़े मिले हमें। एक तो आपने ये इमीडिएटली नहीं लिए, दूसरी बात आपने एक्यूज़ का ब्लड सैंपल ले लिया टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी दैट इट हैज़, जो कपड़ों पे जो ब्लड है वो एक्यूज़ का ही ब्लड नहीं है। ये आपने इसके लिए एक्यूज़ का ब्लड सैंपल नहीं लिया, सो दैट दिस कैन बी एस्टेब्लिश दैट इट इज़ द ब्लड ओनली ऑफ द डिसीज्ड, राइट। और विसरा की जो रिपोर्ट है उसमें अल्कोहल नहीं आ रही, है ना। तो इन सब चीज़ों के बेस पे कोर्ट ने इनको बरी कर दिया, दोनों मुलजिम को, और जो ट्रायल कोर्ट का कन्विक्शन का ऑर्डर था उसे सेट असाइड कर दिया, राइट। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से अगर कोई पढ़ना चाहे तो जो डिटेल मैंने दी थी उस डिटेल को यूज़ करके आप इस जजमेंट को दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।